Hi everyone, welcome to channel Simple Concepts. I am Rashmita, your educator for the subject Indian Polity, and in this series we are covering very important part of Constitution, like the important articles of Constitution. So we have discussed in our previous videos about fundamental rights and अभी तक हमने मेजर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं किया लाइक आर्टिकल 14, 16 उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट मंथ से वीडियो बनाऊंगी फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स. ओके, till then I am covering very small topics which you need to understand before understanding the concept of polity. Okay, so these are very small topics so that जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले कवर हो जाए. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन पार्लियामेंट. एज यू ऑल नो, कोई भी बिल पास होता है जब पार्लियामेंट में तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है, और सिर्फ एक टाइप की नहीं, 4 टाइप की मेजॉरिटीज होती हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिफोर कमिंग टू द मेन लेक्चर, there is this all India free mock test series which is organized by Unacademy. It is going to held on 30th of August, 6th September, 13th September, 20th September and 27th September. So you can enroll for it right now. What you will get if you clear this mock test is you can win a chance to meet UPSC CSE 2019 toppers, top Unacademy educators and Unacademy subscription scholarship. So you can get a scholarship as well after like getting a good rank in this mock test. So enroll for it right now. Do not waste your time. So as you all know, there are like less than 40 days left for your preparation, and if you subscribe to Unacademy, you are going to get all of these benefits on one subscription, like only one subscription. So let us discuss about the benefits that you will get on subscription. So you are going to get learn live from the comfort of your home, unlimited access to all courses, top educators of India on one platform. Also you will get exhaustive coverage of syllabus, your regular doubt clearing sessions, live test series, study material in PDF format and answer writing sessions, which is the main part of UPSC exam. And you will also get mentorship and guidance under this one subscription on Unacademy. So it is like a one-stop solution for complete UPSC CSE preparation. So you'll be getting structured batches with top educators, batches in Hindi, English and bilingual, late night as well as 2 years batches, 100% syllabus coverage, vast range of optionals, prelims test series with evaluation, mains test series with evaluation, dedicated doubt clearing classes, daily current affairs practice, essay and answer writing practices, performance analysis, sectional quizzes, interview preparations and whatnot. So these are the information about the batches which are going to start soon. So the first one is Mission UPSC CSE 2021. It is going to start from 31st of August and it's a bilingual GS batch. It's a 1-year batch, okay, and you will get full syllabus coverage with top educators, prelims and mains test series with analysis, PDF study material, dedicated doubt clearing sessions and interview preparations. Next one is Lakshya UPSC CSE 2021. So this is for the people who are preparing with Hindi medium, okay, like Hindi as their language. So this is going to start from 31st of August 2020. It is also a full 1-year batch and your entire syllabus will be covered. The only difference between the two is that this is in Hindi and this is a bilingual batch. The third one is Expedition UPSC CSE 21, and this is purely English medium based course. Okay, so everything will be taught in English language. So who are comfortable with English language or who want to opt English language as their medium of study, they can join this group. So this is also going to start from 31st of August 2020. It's a 1-year batch course and you will get full syllabus coverage and everything else that you are going to get in any other course if you join Unacademy. The last one is Mission UPSC CSE 2022. So it's a bilingual batch and it is a 2 years batch. So this is for the people who are actually preparing for their UPSC exam for 2022, who are preparing to give their UPSC exam in 2022. So it's a 2 years batch course, full syllabus coverage and everything else like
फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको इनमें सब कुछ मिल जाएगा. सो यू कैन चूज एनी ऑफ द बैच दैट यू फील कंफर्टेबल विद. Also, if you subscribe and you use our code SIMPLEYT, then you are going to get 10% extra discount. So how this is gonna work, so let me tell you. Okay, so when you click on this get subscription button, and suppose you subscribe for 24 months. Okay, so the cost for 24 month subscription is 64,000, and after applying our code SIMPLEYT, you will get 10% off. Okay, and your amount will be reduced to 57,600. So you will approximately save around 2,500 rupees, which is a very good deal. But आपको ये 10% ऑफ तब मिलेगा जब आप ये कोड यहाँ पर अप्लाई करेंगे. So the code is SIMPLEYT. Also I'll be mentioning a WhatsApp number and a contact number. So if you have any difficulty in applying this code, you can contact us on that number. We'll help you out with everything. Also, there is this T20 daily current affairs test series, which is absolutely free. Okay, so ये daily होती है 7:30 PM. There are like 20 questions. You get 20 minutes, and it's of 40 marks. And you will also get test analysis for this. So you are not going to be charged for this. Okay, so you can practice your current affairs with this quiz daily at 7:30 PM. You can also join and follow these groups, or you can say channels on YouTube and Facebook and Telegram for Unacademy. So there are like Unacademy Articulate and other information as well here provided. You can also follow Unacademy on Facebook if you use Facebook and Telegram. Also, you can use this link which I am providing in description box to join our Telegram group. Okay, so what are the benefits of joining our Telegram groups is कि आपको सारी lectures की PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगी. So you don't have to worry about कि मैंने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा. Okay, you will get everything in our group, like from current affairs to quizzes to these PPTs. You will get everything there. You just have to join our group. Simple concepts, या तो वो लिंक पे क्लिक करके जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे और टाइप करेंगे सिंपल कॉन्सेप्ट्स, तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा. Also, you can contact or WhatsApp us on 9689638048 if you have any query regarding anything related to UPSC or applying the code or using Unacademy, or अगर आपको कोई suggestion चाहिए, like which batch to join, which is comfortable to you, like anything if you want to ask us relating to your UPSC preparation, you can contact us on this number. I'm repeating it once again, 9689638048. So without wasting our time any further, let us begin with the lecture. So yes, so we have total 4 types of majorities in parliament. Parliament में 4 तरह की majorities use होती है. वो है simple majority, absolute majority, effective majority and special majority. So now we will see individually कि एक majority का मतलब क्या होता है और वो कब कब use होती है. So first of all, we will discuss about simple majority. So this type of majority refers to a majority of more than 50% of the members present and voting in the house. When it is not specified in the law that which type of majority is needed, then simple majority is taken up for passing such bills or motions. Ordinary bills require only a simple majority. So now let us understand. So सिंपल मेजॉरिटी को हम क्या कहते हैं? बिकॉज इट्स सिंपल, सो इट्स लाइक 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. इससे हमें जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस टाइम पे पार्लियामेंट में जब वो बिल पास हो रहा है उसका 50%, और उनमें भी किनका 50% जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं. सो यू नो कि पार्लियामेंट में जो हमारे MPs होते हैं उनके पास ये पावर होती है दैट दे कैन एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम वोटिंग, कि वो अपने आप को बोल सकते हैं कि, या फिर वो मना भी कर सकते हैं कि हम इस वोटिंग में शामिल नहीं होंगे. सो दैट इज लाइक एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. तो उनको इस वाले कैटेगरी से हटा दिया जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 545. ठीक है.
आउट ऑफ दिस इस 545 में से जो 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो एब्सेंट हैं, वो आए ही नहीं, उन्होंने उस दिन का सेशन अटेंड ही नहीं किया। और इनमें से जो 45 हैं दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब उन्होंने मना कर दिया दैट वी विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू दिस वोटिंग। तो अब टोटल 545 में से कितने लोग बचे? 400, ठीक है। तो अब ये 400 में से जो 50% होगा उसको हम मानेंगे मेजॉरिटी, 50% प्लस 1, देयरफॉर सिंपल मेजॉरिटी विल बी 201 बिकॉज 400 का हाफ कितना हो गया, 50% कितना हो गया, 200 एंड देन प्लस 1, सो इट विल बी 201। सो अगर कोई बिल पास होना है इस वाले सेशन में जिसकी हम इसमें बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में, तो उसमें किसी बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के लिए हमें कितने वोट्स चाहिए? कम से कम 201 वोट्स चाहिए, तब वो बिल पास हो जाएगा। दिस इज नोन एज सिंपल मेजॉरिटी। सो ये सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज होती है? सो वेयर देयर इज नॉट स्पेसिफाइड इन द लॉ, तो इस वाली मेजॉरिटी को हम यूज करते हैं। कई सारे हमारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें दिया गया है कि ये वाले सेक्शन के अंडर बिल पास करना है तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी यूज करनी पड़ेगी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज करनी पड़ेगी। पर जिन लॉज के अंडर ये नहीं दिया होता कि किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए ऐसे लॉ को पास करने के लिए, उसमें हम जनरली या पार्लियामेंट जनरली सिंपल मेजॉरिटी को यूज करती है। जो हमारे ऑर्डिनरी बिल्स हैं पार्लियामेंट में वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होते हैं। ऑल्सो दिस सिंपल मेजॉरिटी को हम किस नाम से भी जानते हैं? फंक्शनल मेजॉरिटी या फिर वर्किंग मेजॉरिटी। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है। सो पहला, एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जब बिल पास करना होता है तब ये टाइप की मेजॉरिटी लगती है, सिंपल मेजॉरिटी। और जब हम स्पीकर को इलेक्ट करते हैं तो उनको भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट किया जाता है। और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल। आई होप आई एम क्लियर विद सिंपल मेजॉरिटी के जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं उनमें से उनका 50% से ज्यादा विल बी सिंपल मेजॉरिटी। Next one is absolute majority. So this refers to majority of more than 50% of the house's total membership. Okay, it is not it's not about strength कि strength कितनी है, no, it is about the total membership. So there is a difference between strength and this membership. Okay, so membership जो है that is like total strength, ठीक है। 545 सीट्स है हमारे पास पार्लियामेंट में, दैट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप इन लोकसभा। अगर हम स्ट्रेंथ काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 545 में से सिर्फ 500 ही लोग इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट। सो दैट विल बी 500 और 45 लोग इलेक्ट ही नहीं हुए हैं, लेकिन टोटल मेंबरशिप को हम 545 ही मानते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब होता है टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा। तो हमारे पास टोटल मेंबरशिप कितनी है? इट इज 545। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी हुई? 50%, ठीक है, 50% से ज्यादा। सो 545 का हाफ करेंगे और हम जब उसमें प्लस 1 करेंगे सो दैट इज 272। तो जब भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो इसमें कुछ इधर उधर नहीं होगा। जैसे अगर सिंपल मेजॉरिटी होता उसमें ये कंसिडरेशन होते है कि इस दिन इतने लोग एब्सेंट थे इसलिए ये पास नहीं हुआ, या ज्यादा लोग आ गए थे या कम लोग आ गए थे, लेकिन जो टोटल मेंबरशिप है वो तो उतनी ही रहेगी लोकसभा की, तो इसमें इधर उधर होने का कोई चांस नहीं है। तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को सीधा सीधा काउंट करते हैं 272 कि अगर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए तो आपको पूरे के पूरे हाउस में, अगर हम लोकसभा की बात करें तो आपको कम से कम 272 वोट्स चाहिए बिल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करने के लिए। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शंस फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट द सेंटर एंड स्टेट। तो जब भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही होती है कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, चाहे सेंटर की बात हो रही हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही हो, तब हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को अप्लाई करते हैं। आई होप दिस वन इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी. So this is effective majority. So what is effective majority? This refers to a majority of more than
50% of effective strength of the house. So what is this effective strength? ठीक है, so for example total membership कितनी थी 545. अब इसमें से वेकेंट सीट्स कितनी है, वेकेंट सीट्स मतलब कि ये लोग इलेक्ट ही नहीं हुए, ठीक है, तो सॉरी हमने मान लिया वेकेंट सीट्स हैं 5, तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ गई, जैसे कि मैंने अभी पुराने वाले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बताया था स्ट्रेंथ के बारे में, तो हमारे पास स्ट्रेंथ हो गई 540 क्योंकि 5 लोग तो इलेक्ट ही नहीं हुए, ठीक है। हेंस जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है वो कितनी होनी चाहिए 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, कि जितने लोग इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आए हैं या उस हाउस में आए हैं उसका 50% या मोर देन 50%। सो व्हाट विल इट बी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें लिया है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ गई 540, ठीक है, क्योंकि 5 सीट है हमारे पास वेकेट, तो 540 का हाफ प्लस 1 कितना हुआ हमारे पास 271। तो अगर हमें इस स्ट्रेंथ के हिसाब से 540 के हिसाब से कोई बिल पास करना है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, तो हमें एटलीस्ट 271 वोट्स चाहिए, ठीक है, इससे कम वोट्स होंगे तो इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं मानी जाएगी और वो बिल पास नहीं होगा। सो कहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है वो अप्लाई होती है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी अप्लाई होती है इंस्टांसेस वेयर इफेक्टिव मेजॉरिटी इज यूज्ड इज रिमूवल ऑफ चेयरमैन। तो जब भी राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना होता है उस टाइम पे हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी मांगते हैं राज्यसभा में, ठीक है, तभी हम चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, अगर आपको डेप्यूटी चेयरमैन को भी अपनी सीट से हटाना है राज्यसभा में, सो यू नीड इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा। ऑल्सो रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर आपको स्पीकर को उनकी पोजीशन से हटाना है या डिप्टी स्पीकर को उनकी पोजीशन से हटाना है लोकसभा में, तो भी आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। एंड व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, इट इज मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ वेरी वेल, मैंने डिफरेंशिएट भी करके बता दिया था। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी। सो हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी भी 3 कैटेगरी में होती है जो अलग अलग आर्टिकल्स के अंडर मांगी जाती है। सो लेट अस सी इंडिविजुअली कि ये 3 टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, सम ऑफ देम आर स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। सो आर्टिकल 249 हमें क्या बताता है? So Article 249 basically gives power to the Parliament to legislate on the matters that are given in state list। के state list में जो matters दिए हुए हैं उनके ऊपर Parliament जो है वो legislate कर सकता है, मतलब laws लेके आ सकता है। ये power दी गई है Parliament को Article 249 के अंडर, ठीक है। तो इसमें कैसी टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है? Not less than 2/3 of the members present and voting. This is generally used to pass resolutions under Article 249 and 312. So इसमें चाहिए होती है हमें कि कम से कम 2/3 लोगों की मेजॉरिटी, members present and voting के जितने members present हैं और उनमें से कितने वोट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मेजॉरिटी है उनकी एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी हमें इसमें चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इज 423, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 545 स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, उसमें से कुछ जो हैं वो इलेक्ट नहीं हुए या एब्सेंट है कह लीजिए, और कुछ जो हैं उन्होंने एब्सटेन कर लिया वोटिंग से। सो हमारे पास जितने मेंबर्स वो उस दिन आए हैं सेशन में वो, और उनमें से कितने वोट कर रहे हैं वो है हमारे पास 423 आउट ऑफ 545। तो अब 423 का 2/3 कितना हुआ? 141। सो अगर हमें आर्टिकल 249 के अंडर कोई बिल पास करना है, ठीक है, और हम इस एग्जाम्पल के हिसाब से चल रहे हैं और हमारे पास इतने लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, तो हमें इतने में से कम 423 में से कम नहीं तो 141 लोगों का वोट चाहिए। अगर हमारे पास 141 लोगों का वोट नहीं है 423 में से, तो हम
उस बिल को पास नहीं कर सकते इन पार्लियामेंट. दिस इज रिलेटेड टू ओनली आर्टिकल 249. रिमेंबर, ये वाली स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ कब यूज होती है? जब हमें आर्टिकल 249 के अंडर कोई बिल लेके आना होता है या फिर आर्टिकल 312 के अंडर कोई बिल लेके आना होता है. ठीक है. Now let us move on to second subcategory of special majority. So this is special majority under Article 368. So Article 368 is amendment to the Constitution. कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो ये टाइप की मेजोरिटी यूज होती है. सो टू मीट स्पेशल मेजोरिटी ऑफ दिस टाइप्स, टू कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड. तो जब भी हमें ये वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो हमें दो कंडीशंस है जो फुलफिल करनी ही पड़ती हैं एक साथ. ऐसा नहीं कि आप इन दोनों में से कोई एक फुलफिल करो तो भी चलेगा. नो, ये दोनों की दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी आर्टिकल 368 के अंडर वो बिल पास हो सकता है. नाउ लेट अस सी what are these two conditions. So the first condition is not less than 2/3 present and voting, and the second one is majority of the total strength of the house. कि कम से कम नहीं तो 2/3 present and voting होने चाहिए, कि हमारे पास majority होनी चाहिए 2/3 of present and voting और majority of the total strength of the house. ठीक है, समझ गए कि total strength जितनी है हाउस की, कि जितने लोग इलेक्ट हुए हैं उस साल, ठीक है, उन लोगों का मेजॉरिटी लाइक हाफ 50% और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. सो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी है? 545. ठीक है, टोटल मेंबरशिप कह लीजिए. उसमें से वेकेंट कितनी है? 100 लोग इलेक्ट ही नहीं हुए. ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे? 445. अब उसमें से एब्सेंट हो गए कुछ. एब्सेंट कितने हैं? 46. तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हुए टोटल? 100 वेकेंट, 46 जो है वो एब्सेंट हो गए उस दिन. तो हमारे पास जो उस दिन लोग आए और जो उनमें से वोट कर रहे हैं वो है 399. कि 399 लोग आए उस दिन और वो सारे के सारे वोट कर रहे हैं. सो अब इस 399 में से हमें क्या क्या चाहिए? एक तो 399 का 2/3 मेजॉरिटी और टोटल मेंबरशिप या टोटल स्ट्रेंथ जितनी है हमारी 445, ठीक है, उसका हमको चाहिए टोटल मेजॉरिटी. सो पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी कैसे फुलफिल हो रही है. तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल करने के लिए अगर 399 लोग वोट कर रहे हैं तो 2/3 ऑफ 399 कितना हुआ? इट विल बी 266. ठीक है, तो अगर हमारे पास 266 लोगों के वोट हैं तो हाँ, हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. अब जब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है तो अब हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं. सो फॉर सेकेंड कंडीशन, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास हाउस की? 445, क्योंकि उसमें से 100 वेकेंट है 545 में से. तो अब 50% ऑफ 445 कितना हुआ? इट इज 223. तो अगर हमारे पास 266 लोगों के वोट हैं तो इसमें 223 भी आ गया. तो इसमें जो है हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई कि हमारे पास 223 है, मतलब हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी है और 266 से ज़्यादा है. इसका मतलब हमारे पास 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी भी है. तो इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए ये वाली मेजॉरिटी लाना बहुत ज़रूरी है. इसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ लाइक दैट इज़ वाई वी कंसिडर कि दिस इज़ अ वेरी रिजिड यू कैन से आर्टिकल, कि इसके अंडर ये मेजॉरिटी लाना, दोनों कंडीशंस फुलफिल होना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं होता. नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी. सो स्पेशल मेजॉरिटी एज अंडर आर्टिकल 61. ओके, सो दिस इज फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि हमें इम्पीचमेंट के लिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए. सो इसके लिए हमें चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कि जितनी भी स्ट्रेंथ है हाउस की उसका हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि उस साल 545 ही लोग इलेक्ट हुए हैं, तो पार्लियामेंट में 545 की स्ट्रेंथ हो गई. तो 2/3 कितना हुआ 545 का? इट इज 364 और मोर.
तो अब हमें कम से कम अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, सो वी नीड 364 वोट्स और मोर देन 364 वोट्स. अगर 364 से कम है सो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे. I hope I am clear with this special majority. I have explained all types of majority to you. So now जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या कहीं पे सिंपल मेजॉरिटी लिखा है या स्पेशल मेजॉरिटी लिखा है, so you'll be able to relate to that. So this is it with this lecture. I'll see you all in my next lecture. So till then, please take care and bye bye.